the first episode of Time to Talk Initiative Part 2. We have Dr. Abhinav Kumar Saxena with us. Kindly introduce yourself, sir. Hi, I am a junior doctor actually. I'm an intern and I'm studying in Bhopal and I basically belong to Lucknow. Hi Tarashi and thank you so much for inviting me to this. My pleasure, sir. Thank you so much for coming. And let's talk about yourself. आप कैसे होम्योपैथी में आए? How did you land up in homeopathy? What's your story? See, it was an accidental landing. I This was my second option. I always wanted to go for veterinary sciences, and I have a family background of homeopathy also. Like my father has his own pharmacy in the sector. Or my maternal side belongs to the allopathic sector, while my paternal side belongs to the homeopathic sector. So अरे in वाह. that conflict of life, I ended up into the homeopathic field. ओके, सो होम्योपैथिक बैकग्राउंड होने का क्या इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर? आप मतलब प्रभावित थे इस चीज से या नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, क्या था? See, I was always attracted towards this Peti. Because, matlab, I'll tell you one thing very frankly, I never wanted to come into this Peti, and even when I came to this Peti, it was never for the humans. Matlab, I guess I still have a inclination towards the animal sector of the homeopathy. As मेरे घर पे जितने भी pets रहे, we always tried managing them via homeopathy and it gave tremendous results. मतलब I've seen जहाँ पे allopathic medicines fail हो जाती थी उस condition को manage करने के लिए, वहाँ पे कई बार लूज मोशंस में नक्सोमिका की सिंगल डोज ने मैंने देखा है पैरेट की लूज मोशंस रोकते हुए, या एक डॉग हु इज इनटू दैट लास्ट टाइम ऑफ हिज, उसको एक होम्योपैथिक की सिंगल डोज पे उसको मैंने रिकवर करते हुए देखा है. I've seen buffaloes giving birth to their babies, to their calves after getting homeopathic remedies. जो birth जो थी, जो veterinary physicians ने बोल दिया था कि ये possible नहीं है, मतलब it has to go into a surgical section, but then homeopathic worked miracle for them. So for me, this was a different sector to explore, and thus I had amazing faith over this Peti, but I duly wanted to learn more into the sector. ओके, सो जब आपको बोला गया कि आप होम्योपैथी कर लो, तो आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि अरे नहीं, होम्योपैथी क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस तो थे कहीं ना कहीं. Tried my all my aspects around. मतलब I had tried foreign universities, I had tried Indian universities. तो जहाँ पे जाने का मन था, that was फॉर Royal वेट फॉर University of वेटनरी. Veterinary Sciences, Canada, for ओके veterinary. ओके है ना, तो ओके. I had tried that then, but due to their high amount of fee structure, I was like this was a far better option. तो करना तो है, तो it's like why not get into something that I know that my family can help me through, and why not to get into something that I guess God is leading you into. I am a person of science, but in this aspect I am a person of faith too. So for me it was like God guides you somewhere, and I guess this was my path. And you landed in homeopathy. Yeah, actually, it was actually So a parachute jump. so my third question का आंसर तो आपने पहले ही दे दिया है. It was what influenced you. So you have already given the answer that the results of homeopathy that you saw on your pets that influenced you. Hmm. Okay. So होम्योपैथी बैकग्राउंड जो आपका रहा है, उसमें मतलब मतलब एक होता है कि रूबरू होते रहना एक चीज जी से, है ना? जी. उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कितना फ्रिक्वेंटली आप होम्योपैथी के कांटेक्ट में आए इन एनी वे. To have a pharmacy at a place. Actually, my father is an engineer, basically. So when that setup got like closed, so he started this venture. So I remember his shop. His initial shop was in Bareilly, Uttar Pradesh. So we used to go there on summer vacations, and हम एक महीना उनकी शॉप पे जाके बैठते थे. हमारे लिए वो मीठी गोलियां होती थी जिनको हम खाते थे और हम सही हो जाते थे. But then, as I grew in age, there were doctors that used to sit at his pharmacy, and उनसे जब interaction हुआ, so I got to realize कि it's a very effective medicine. It's not just working on pets, but it is as well as like acting that amazingly on human beings too. And I remember there was this doctor who used to sit on the chair at that moment, और ये cancer में बहुत specialize करते थे. तो
that person, I guess, somewhere or the other at back of my mind, he was the one who influenced me. I used to admire his attire. I used to admire the way he used to deal with patients, and then I used to admire my father, because my father. अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. I guess this is somewhere out of the context, but he's a person who has, like, I guess, घोटोड William Boric completely. You Oh, ask him and he'll give you medicines for that. But then he always used to say कि भले ही मुझे कितनी भी आती है, but I am not a physician. He never used to prescribe. I've seen people prescribing homeopathic medicines घर बैठे, but he never used to prescribe because he said कि मैं physician नहीं. And for him, when I told him that I'm taking biology, so he shifted that setup from Bareilly to Lucknow. That is where I belong to. So ठीक है, आपको 4 साल 5 साल हो गए अब कॉलेज में. डू यू फर्मली बिलीव इन होम्योपैथी? डू यू फर्मली बिलीव एंड, और मतलब, या फिर आप अभी भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आप डाइवर्टेड हो कहीं ना कहीं माइंड में वेटनरी की तरफ या फॉरेस्ट्री की तरफ, क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं. आई बिलीव इन द सिस्टम, बट मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, मैं भी फिर वो चीज रिपीट करूंगा. आई एम अ मैन ऑफ साइंस. My parents, my teachers have taught me not to believe in anything blindly. I don't have blind faiths on anything. I don't have blind faiths on any person. One thing that I love, and I guess people who have been on my page, they realize that why is the biggest question of my life, and I love to ask why. So I am a believer of the system. I am someone who's willing, who's readily working in the system, and I will devote my everything and anything for the system. Or I tell you one thing. I came here as a person of faith, but today I grew up as a person of science. There was this reason I realized that there is much more to homeopathy than we have always felt. तो बस ये है कि I am someone who is willing to explore more. I am someone who is willing to dedicate every resource that I have into the system. People often ask me कि मैं हॉस्पिटल्स जाता हूँ या मैं जो है किसी फार्म उस पे काम करता हूँ, किसी पैथोलॉजी लैब पे काम करता हूँ. बट नो, मतलब आई टेल यू टुडे दैट आई हैव बीन वर्किंग एट होम्योपैथिक क्लिनिक फॉर द पास्ट 5 years. मैंने अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी खत्म करने से पहले एक क्लिनिक ज्वाइन कर ली थी. And I have been assisting this person for the past 5 years now. Definitely, I have had exposures in the modern system sectors also, but I have dedicated my 5 years into this system, and I know how important that is for me. And I guess people who have been attached with the clinic, or people who have been attached with us, the sector we are working into, I have seen them turn into people who have started believing in homeopathy. According to you, what is the best thing about homeopathy? See, according to me, the best thing about homeopathy is that we still have a hell lot to learn. है ना? मतलब, it's like other than any system, it's we are the only system who have an open field. I remember one of my organon professors. He came into the class and he said कि आप में से कौन आगे बढ़ना चाहते हैं? And every one of us like raised our hands, and then he was like कि ये फील्ड जो है ये खाली मैदान है, हम भागना नहीं चाहते हैं. हम शायद हम इतने डिमोटिवेटेड हो चुके हैं अपने सिनेरियोस को देखते हुए कि हम आज भागना नहीं चाहते हैं. बट ट्रस्ट मी गाइस, जो भाग लिया उसने ये फतेह कर ली जमीन. Last question, but a very important one. What are your plans in this field? क्या आप करना चाहते हैं होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथी में, होम्योपैथी को लेकर क्या करना चाहते हैं? क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स? हाँ, सो देखिए, पहली चीज तो एक बहुत जो बड़ा चीज है मेरे लिए, दैट इज लाइक बीइंग समवन लाइक यू. आपने जिस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग फॉर द सिस्टम, इट्स लाइक इट्स अमेजिंग. जो पहला टॉक शो था उससे हमें ये मिला कि हाँ, इट्स नॉट जस्ट लाइक वी आरंट अलोन. People are there who have faith in this system. People other than this system have faith in this system. So why not us? So एक वो बहुत मोटिवेशनल पॉइंट था. आई गेस जिसने भी वो देखा है उसको एक अच्छा लगा होगा कि हमें छोड़ के भी लोगों को फेथ है, क्योंकि हमें हमेशा इस चीज का एक डर होता है, आई गेस, हर होम्योपैथ को, कि लोगों को हमारी सिस्टम पे फेथ नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो And एक
तो मैं बोलूंगा इस चीज को प्लीज कंटिन्यू रखिएगा आप। यू आर एन अमेजिंग प्रोटैगनिस्ट हु इज वर्किंग अमेजिंग, हु इज वर्किंग मिरेकल्स इन दिस सिस्टम। तो थैंक हमें यू। ऐसे लोग जरूर चाहिए। और आप, हमें भी ऐसे लोग चाहिए जो हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे। हाँ, एंड यू एंड अदर पेजेस जो बहुत हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, स्टोरीज डालते हैं, दे हैव बीन अ ग्रेट ग्रेट हेल्प, सो थैंक यू सो मच। सो है ना। कंटिन्यू विद योर आंसर प्लीज। जी, नहीं, तो दैट वाज माय आंसर, दैट वाज माय इनिशियल फेज ऑफ द आंसर। एंड दूसरी चीज ये है कि एक ख्वाहिश है एमडी करने की। और एमडी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करनी है, कुछ सीखना है, कुछ बड़ा करना है, उसके लिए एमडी करनी है। रिसर्च सेक्टर में घुसना है, जो जिस चीज के लिए मैं भागता हूँ, जिस चीज पे मैं हमेशा एक कोशिश रही है कि वो चीज, वो खोद के निकालने वाली चीज, वो वाई वाला आंसर, वो वाई का आंसर ढूंढना है मेरे को। और वुड लाइक टू कोट वन पर्सन, आई गेस यू हैव हर्ड अबाउट बेनर्जी प्रोटोकॉल। जी जी जी। आई वाज रिसेंटली उनका एक वीडियो देख रहा था ऑफ फोर्थ जनरेशन होम्योपैथ ऑफ द लाइन। सो ही कोटेड वन थिंग एंड आई लव दैट कि पेशेंट हमारे पास ये सोच के नहीं आता है कि हम होम्योपैथ हैं या हम एलोपैथ हैं। वो ये लेने नहीं आता दवा कि वो होम्योपैथिक लेगा आपसे कि वो एलोपैथिक लेगा आपसे। वो इस अप्रोच के साथ आता है कि आप डॉक्टर हो और वो पेशेंट है और उसको सही होना है। तो मुझे मतलब वो शायद लाइन छू गई। और मैं उस लाइन के साथ, उस उम्मीद के साथ बढ़ना चाहूंगा आगे अपनी लाइफ में कि आई गेस इस सेक्टर में आकर के एक चीज मुझे रियलाइज हुई, और उस चीज को हम सबको समझना चाहिए कि होम्योपैथी ना हम है ना आप है, होम्योपैथी कंबाइंड है, इट्स अ कोलैबोरेटिव सिस्टम and we need to grow as a system. We need to talk about unity today. And but I guess that is what you guys are doing. You guys are uniting this system into a bigger cocoon, into a bigger mushroom. And thank you guys for doing that. थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में बस एक छोटी सी चीज टू कंक्लूड दिस टॉक। बहुत सारे लोग हैं, हमारे सिस्टम से ही हैं, कंफ्यूज रहते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू परस्यू होम्योपैथी फर्दर, मतलब कर लेंगे डिग्री, ठीक है, हो जाएगा, बट दे आर स्टिल लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस, दैट फेथ इन होम्योपैथी जो उनको आगे करियर एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। So, उनके लिए आप एक टेक अवे मैसेज कुछ अपनी तरफ से देना चाहेंगे? ओके, फिर एक अपने टीचर को कोट करूंगा यहाँ पे। उन्होंने एक चीज हमें बताई थी कि अगर आप पैसे के पीछे भागते हो तो आपके लिए अदर सेक्टर्स हैं। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके पीछे भागे तो आपके लिए ये सेक्टर है ना। तो आज भले ही स्टैब्लिश होने में हमें टाइम लगता है, बट हम जिस दिन स्टैब्लिश होते हैं उस दिन वी गेट टू अर्न मच मोर देन एनीवन एल्स इन दिस सिस्टम। सो थोड़ा सा समय दीजिए आप। हम सबको समय लगेगा। आप शायद हम आपने थोड़ा पहले शुरू किया हो, जो शुरू कर रहा है, जो आज से भी शुरू कर रहा है, वो भी बहुत दूर नहीं है, बहुत देर नहीं है ना। वो आज से अगर उठ के भागना शुरू करता है तो हम साथ में लेके चलेंगे। सड़क पे गाड़ी चलाते हैं और एक बंदा है जो 60 की स्पीड पे बाइक चलाता है, एक जो है वो 40 की स्पीड पे बाइक चलाता है। ट्रैफिक सिग्नल सबको मिलते हैं, स्टॉप सबका आता है ना, और मंजिल एक है। हम्म। तो बाय द एंड ऑफ द डे 5-1 मिनट का अंतर होता है मंजिल पे पहुंचने के लिए, अगर हम सब सीधे रास्ते से जा रहे हैं। एंड होम्योपैथिक में सीधा रास्ता ही है। आपको लड़ते भिड़ते, सिग्नल पे रुकते और फिर तेजी से चलते हुए आपको जाना पड़ेगा। तो मंजिल एक ही है हम सबकी। थोड़ा समय लगेगा बट सब पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे और वील अचीव दैट। सो नाइस, सो नाइस, दैट्स सो नाइस। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉक के लिए हाँ कहने के लिए, एंड हम सबको इंस्पायर करने के लिए। एंड गाइस डू चेक आउट हिज पेज, द फ्रस्ट्रेटेड होम्योपैथ, which has a very positive message, very positive vibe, and आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे। एंड ही इज जस्ट अ पर्सन, हमारे बीच से ही निकला हुआ, हमारे बीच से ही आगे बढ़ा हुआ, so we can all learn from him. Thank you so much for joining us, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। और बस एक ही बात बोलूंगा यार, इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा। आपसे बड़ा प्रोटैगनिस्ट अभी मैंने नहीं देखा इस सेक्टर में, इंस्टाग्राम पे। सो इस Thank चीज you. को कंटिन्यू रखिएगा। और Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।